किसी के ذہن میں کوئی سوال ہو تو کرنا. ایک لیڈیز میں کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کے بھیج دیں پرچے پہ پین سے. کیا میں رمضان کا روزہ بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ غیر رمضان کا روزہ بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن سحری جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے اور برکت کی چیز بتایا، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ کو سحری کھانی ہی چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہو آپ کی سحری نکل گئی تو رمضان کا بھی رکھ سکتے ہیں بنا سحری، لیکن قصدن سحری چھوڑنا یہ تو آپ ایک رحمت کو چھوڑ رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا ہمارے اور پچھلی قوموں کے روزوں میں سحری فرق کرنے والی چیز. یہودیوں کے جو روزے ہوتے تھے ان میں سحری نہیں ہوتی، تو ہمیں ایک نعمت دی تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، چاہے آپ کے ایک کپ دودھ ہی پی لیں. ان کا سوال یہ نفلی روزہ کیا 8-9 بجے جیسے اس میں آنکھ نہیں کھلی تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں تشریف لائے، جب کھانے کو ہے صبح کا وقت تھا، گھر والوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو نبی نے پلٹ کے کہا ٹھیک ہے میں روزہ رکھتا ہوں. وہ ٹائم صبح کا ہی تھا تو یہ بھی سنت ہوتا ہوں گے اگر آپ اس ٹائم ہوتا. قرآن شریف نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ برابر میں ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے نیچے بیٹھے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں. آپ نیچے بیٹھے ہیں مسجد میں، جن لوگوں کو مان لو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی حرمت نہیں. ان کے اصل میں قرآن کا جو تقدس ہے نا وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن پریس پہ چھپتے ہوئے یا دل دھوتے ہوئے یا ٹرانسپورٹنگ دیکھ لو تو آپ تعجب کرو گے. آپ کو چومتے چاٹتے ہو قرآن پر. تقدس اصل میں ہمارا یہ اصل قرآن کا تقدس یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے تھے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح تو بہت مشکل زندگی ہو جائے گی. اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاؤں چل رہے ہیں جوتے رکھے ہوئے ہیں، نیچے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تقدس یہ نہیں ہے جان بوجھ کے آپ بے حرمتی رکھیں. ہاں جی بھائی. کچھ لوگ جو ہے یہ چاند گرہن کی بات کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم موبائل نہ استعمال کریں اور بھی کچھ وغیرہ وغیرہ کھائیں پیے نا 9 سے 1 بجے تک، ایسا کچھ سچائی سے لینا دینا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے چندر گرہن کا اسلام سے کچھ لینا دینا ہے؟ بھائی یہ سائنٹیفک بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم موبائل وغیرہ کی جو بھی ریز ہوتی ہے نا وہ کئی بار ٹکرا جاتی ہے تو اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے میسیجز آتے ہیں. نبی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی کہ اس ٹائم نہ کھائے پیے. بالکل کھائے پیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے ہیں. جبکہ ایک بیٹے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ جب ہوئی ان کی ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہا گیا کہ یہ سورج گرہن تھا جس وجہ سے پڑھے. تو نبی نے منع فرمایا کرتے ہیں اس طرح کی بات نہ کرو، یہ گناہ ہے. اس طرح کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی سورج گرہن کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا. سب اللہ کی وجہ سے. کھانے پینے میں کچھ احتیاط وغیرہ کی بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اس میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کھانے پینے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، ایسے بالکل کچھ نہیں ہے. ہمیں تو نبی کی تعلیمات پہ چلنا ہے. ہاں اگر آپ کھلے میں کھا رہے ہیں تو مت کھاؤ. کچھ ریز کا خطرہ ہے اس طرح کے معاملوں میں تو آپ اندر جو مرضی کھاؤ، کسی چیز کی احتیاط نہیں کرو. اگر 2 رکعت بعد امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور ہماری احتیاط پوری نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور آپ کی احتیاط پوری نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ جلدی جلدی احتیاط پڑھیں. امام صاحب کا کھڑے ہو، آپ امام کے تابع ہیں. آپ امام کے مزاج کے حساب سے اپنی تلاوت میں تیزی لائیں. جب آپ تنہائی کی نماز ہو نا سنت نفل ان میں جتنا لفظ پڑھیں لیکن وہاں آپ اس ٹائم آپ امام کے تابع ہیں، ان کے حساب سے آپ. ہاں جی. چھوٹی چڑیا اور یہ طوطے وغیرہ پنجرے میں رکھ لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حکم ہے؟ گناہ ملتا ہے اس سے؟ ان کا سوال یہ ہے طوطے چڑیے پنجروں میں رکھنا اس کا کوئی حکم ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ بالکل یہ گناہ ہے بھائی. جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے انہیں قید کرنا گناہ ہے. ان کا رزق تو اللہ نے بانٹ دیا پوری کائنات میں. وہ جہاں مرضی اڑے پھریں اپنی موج
कैसा लगेगा? बेहतरीन आपको चीज़ें मिले जो आपको घर में मैसर नहीं थी। बिल्कुल इनकी भी जिंदगी है, जिस तरह अल्लाह ने जिसे बनाया है उसे वैसे ही आज़ाद छोड़ देगा। बकरी और बिल्ली पालना क्या सुन्नत है? इनका सवाल यह है बकरा बकरी या बिल्ली पालना क्या सुन्नत है? भाई बकरा और बकरी चराना सुन्नत है, उनका बिजली सुन्नत है, पालना सुन्नत नहीं है, बल्कि उन्हें उनका बिजली सुन्नत है। बिल्ली कोई सुन्नत नहीं। बिल्ली एक सहाबी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा बिल्ली इकट्ठी होती थी, उनका नाम जोड़ना जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे ना, हुरैरा बिल्ली को कहते हैं, तो हुजूर ने मदार को उन्हें बिल्लियों को बाप कहना शुरू कर दिया। हाँ, खुशबू लगाना कब हराम है? इनका सवाल ये खुशबू लगाना कब हराम है? सिर्फ हराम की हालत में खुशबू लगाना हराम है, और औरतों को ऐसी खुशबू लगाना हराम है जो दूसरे गैर मर्दों को उसकी खुशबू आए। रंग वाली खुशबू एक आती है सऊदीया में, अरब में, वो लगाती हैं औरतें, लेकिन खुशबू जो दूसरे नामहरम मर्दों को आए, अपने कमरे में अपने हस्बैंड की जो खुशबू वाली भी लगा सकती हैं। एहराम की हालत में किसी किस्म की कोई खुशबू या साबुन खुशबू वाला या पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो। बाकी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है और हुजूर की पसंदीदा चीज़ों में है। जब हुजूर से पसंदीदा चीज़ें पूछी गई तो उसमें हुजूर ने खुशबू भी बताई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे से आने वाले होते थे तो ऐसी खुशबू में झोंके आते थे कि साहबा किराम को अंदाजा हो जाता था कि हुजूर आने वाले, ऐसे जैसे खुशबू में नहाएंगे। तो खुशबू लगाना बड़ी सुन्नत है और हुजूर का हुक्म भी है। जुमे के दिन तैयार हो गए खुशबू लगा के, हुजूर तो जिस महफिल में जाते थे महक जाती थी, हुजूर के जो थैला था उसमें खुशबू भी होती थी। जैसे कि इधर लगाने से सुन्नत लग जाता है, तो क्या हम परफ्यूम लगा सकते हैं किसी भी तरह? उनका सवाल ये इधर लगाने देकर सर में दर्द हो तो परफ्यूम लगाने बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन खुशबू इस्तेमाल जरूरी है। हाँ जी, सूरत बंद में क्या चाहिए उसका मतलब है कि जब पिछली खोल दी जाएगी इसको क्या मतलब? इनका सवाल यह है, सूरह कलम की आयत है कि जब पिंडली खोल दी जाएगी, मतलब अल्लाह की पिंडली का जिक्र है। वो पिछली से कपड़ा आगे जाएगा और सजदे की भी दिखाई जाएंगे तो सजदा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पिंडली का जिक्र है। इसी तरह से बहुत सारे अल्लाह के चेहरे का भी जिक्र है। ये सब मुतशाबिहात है। ये वो जिक्र है कि जब अल्लाह की तजल्ली आएगी सामने, वो दिन वो होगा तो उस दिन उसकी तजल्ली के सामने सारे सजदा देंगे, चाहे कोई काफिर हो चाहे मुसलमान हो। तो ये सब है मुतशाबिहात में किस तरह की पिंडली होगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का जिक्र है, अल्लाह के चेहरे का जिक्र है, अल्लाह के हाथ का जिक्र है, अल्लाह के मतलब वो रेत फेंकने का जिक्र है कि अल्लाह ने रेत फेंका तो नहीं फेंका, काफिर हो जाता। लेकिन ये सब मुतशाबिहात होते हैं, लोगों ने अंदाजे तो लगाए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये तजल्ली हो सकती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है क्योंकि नबी ने भी इसके बारे में हमें तालीम दी। औरतें कैसे लगाती हैं उनके हाथ में मतलब हो जाता है? इनका सवाल ये है कि औरतें कैसे लगाती हैं, क्या उनका मसा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। फिर मसे के लिए चौथाई सर का मसा चाहिए होता है। तो कैचर जो है वो थोड़े से हिस्से में लगा होता है। अगर आपने पूरा हाथ गीला किया औरतों ने और अपना पूरा पीछे तक उन्हें भेज दिया, बिल्कुल चौथाई हिस्से में चले गए इंशाल्लाह, और वो उनका मसा होगा बिल्कुल। आजकल नेट पर एक बुजुर्ग महीने में घूमते दिखते हैं, ये लोग सहाबा की तरह बता रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? हाँ, मैंने भी देखी है कि भाई एक बुजुर्ग जो है वो मदीने में घूम रहे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा ये सहाबा जैसे लग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे नज़दीक में। क्या सहाबा इकराम का जो तकद्दुस है, सहाबा इकराम का जो मर्तबा है, आज के लोगों से मिलाना उन्हें मेरे नज़दीक तो पंगा लेना है लग गया। क्योंकि इस टाइम को सहाबी किसे कहते हैं? जिन्होंने नबी को देखा हो, जिन्होंने तो नबी को नहीं देखा। ये कैसे ही शक्ल से लग रहा हो, कितने ही नेक हो, कितने ही मुत्तकी परहेज़गार हो, लेकिन ये कह देना कि सहाबा जैसे लग रहा है ये तो गुनाह की बात है। आप मुत्तकी परहेज़गार कह सकते हो, मेरे नज़दीक कुछ नहीं है। इनका सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आगे भी चलेगा और इंतजार ही कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, अलामतें हैं, अभी वो अलामतें नहीं आई हैं। नबी की जो पेशिंग गोइयाँ हैं, उन अलामतों को जब आप पढ़ोगे तो आपको उनका इंतजार ही रहेगा। आप इश्काल नहीं हो सकता, आप उनको आगे चलेंगे।
क्या वलीमा करना शादी के लिए जरूरी है? इनका सवाल ये है हैं? इसी में सवाल है क्या शादी करना चाहे तो उसके लिए इस्तिखारा करना भी जरूरी है इस्तिखारा करना। शादी के इनके दो सवाल हैं भाई, अगर शादी करनी हो तो क्या इस्तिखारा करना ज़रूरी है? नहीं भाई, इस्तिखारा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जज्जा हो कि भाई यहाँ मैं करूँ या ना करूँ, वहाँ तो आप इस्तिखारा करो। और अगर आपका दिल पक्का है, अगर आपको लड़का या लड़की पसंद है, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दो नफिल पढ़ के हाँ करो, इस्तिखारा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरा आपका सवाल है कि वलीमा ज़रूरी है। मेरे नज़दीक वलीमा ज़रूरी है, क्योंकि नबी ने अपने सहाबी को ये बात फरमाई कि अब्दुर्रहमान बिन औफ वलीमा ज़रूर किया। हालांकि मुझे पता है कि उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता, ये बदतरीन खाना भी हो सकता है अगर गरीबों को ना बुलाया जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा वलीमा ज़रूर किया। तो हुजूर का इसके बारे में जोर देके कहा गया, तो इसलिए वलीमा करना चाहिए। चाहे आप 5 किलो चावल घर में पका के ना वलीमे की नीयत से और अपने बहन भाइयों की दावत करते हैं, वलीमा किया। वलीमे के लिए ज़रूरी कि आप हॉल बुक कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा 1000-2000 आदमियों का फंक्शन करें। वलीमा तो एक नीयत है कि हम अपने रसूल की एक सुन्नत को अदा कर रहे हैं, वो 5 किलो चावल में हो जाता है। जो दावत दी जाती है जमात वाले दावत को दी जाती है तो कौन सा देता है? इनका सवाल यह है, तबलीगी जमात वाले जो दावत देते हैं वो तो दावत तो गैर मुस्लिमों के लिए है। ये इस्लाह लफ्ज़ होना चाहिए, होना तो इस्लाह ही चाहिए, मगर ये चलन में है, कोई हरकत नहीं है, कोई बनाई नहीं है। दावत आप लोग जो असल दावत को समझते हो, आप अपना काम नहीं करो, आप गैर मुस्लिमों में जाना शुरू करो। वो हमारे भाई जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो करने दो। वो दावत कह के करें या आप इस्लाह कह के करें, उन्हें करने दो, हमें कोई उंगली नहीं उठाने की टिकट। वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारी जमात। क्या बच्चों को खुशबू लगाने से जिन आते हैं? हाँ, ये बड़ा है सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया कि क्या बच्चों को खुशबू लगाने से जिन आ जाते हैं। बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बच्चों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि नबी की बड़ी सुन्नतों में है खुशबू लगाना, और एक भी हदीस नहीं है कि हुजूर ने मना करा हो बच्चों को खुशबू लगाना, बल्कि लगाया करो। ये तो पक्का है कि खुशबू लगाने से फरिश्ते आते हैं, और बदबू की चीज़ें लगाने से जिन और शैतान आते हैं। जो आपको दुआ सिखाई जाती है लैट्रिन में जाने की, उसका मतलब यही है कि आप जो है उन शैतानों से, खबीसों से पनाह मांग के जो है अंदर घुस रहे, क्योंकि वो गंदी जगह है, लैट्रिन जगह है, बदबू की जगह है, तो वहाँ जिन्नात का पूरा जमघटा हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों की हिफाजत करानी तो खुशबू लगा के बाहर भेज जाता है, जिससे कि फरिश्ते उनके चारों तरफ हैं, उनकी शैतानों से हिफाजत करते हैं। और ये भी बता दूँ मैं आपको, जहाँ जिन्होंने फरिश्तों को देखा ये बात, तो मैं तो उल्टा कहूँगा, माएँ जो है वो अपने बच्चों को खुशबू लगा के भेजे बाहर, जिससे कि चारों तरफ उनके फरिश्ते रहें, उनकी हिफाजत होती है, और जिन फरिश्तों को देख के उनके आस पास भी ना पहुँचे। जैसे ख्वाब में अगर किसी को इंतकाल होते हुए देख लें, कोई मर जाता है और कहते हैं कि इनकी उम्र बढ़ गई, क्या ये बात सही है? इनका सवाल ये है कि किसी का इंतकाल हो जाए, कहते हैं उम्र बढ़ गई, क्या ठीक है? ये भी सिर्फ मुआशरे की बुराई की बात है, नबी ने तो नहीं फरमाई है। और हमारे ख्वाबों की वैल्यू क्या? हमने तो रात को ज़्यादा खा लिया, कोई हमारे दिमाग को चढ़ा हुआ है, कोई मौत, किसी का एक्सीडेंट तो हम देख लेंगे मर गया, कुछ नहीं होता हमारे ख्वाबों में। इसलिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है इस बात की कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र में बरकत के लिए नबी की जो हदीसें हैं वो पढ़ें आप, कि किन किन कामों से उम्र में बरकत है, असल चीज़ वो है। और चुगली किसे कहते हैं? गीबत और चुगली, इनका सवाल ये है, गीबत और चुगली किसे कहते हैं? भाई दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। गीबत कहते हैं पीठ पीछे बुराई करने को, जो बुराई उस शख्स में हो। जब नबी से पूछा कि अगर हुजूर उसमें बुराई हो, कि हाँ अगर हो तभी गीबत है, अगर उसमें बुराई नहीं है, आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो फिर वो बोतान है। लेकिन चुगली में एक फ़र्क ये है कि आप इससे भी आगे बढ़ जाते हो। ऐसी गीबत जो आप लड़वाने के लिए करते हो वो चुगली कहलाती है। दो भाइयों में जैसे एक के पास आप गए और उसे चढ़ाया आपने कि फला ये इतना बुरा कह रहा था, और मतलब तेरे ख़ानदान को, तेरे घर वालों को, और तू डर गया उधर। उसके बाद यार मैं उससे बात कर रहा था, उन्हें तो पता नहीं तेरे लिए कैसी कैसी गाली निकाल। तो इन्हें लड़वाना ये चुगली है। ये गीबत से भी एक अगली चीज़ है। चुगली खोर के बारे में उन्होंने कहा कि जन्नत की खुशबू की जुमे का जो टाइम बताया आपने, जुमे का जो टाइम बताया 1 घंटा कारोबार काम करने के लिए, तो ये कौन सा टाइम सही है? कुरान की आयत है
अजान से लेके अजान होते ही दौड़ो मस्जिदों की तरफ और नमाज होने तक जो पहली अजान होती है ना जुम्मे की उससे लेके चीज़ से बताने के सामने कोई रिश्ते का वादा पूछता है कि से और हमें उसकी कोई कमी बताए तो ये बताना चुगली आएगी या इसको गुनाह मिलेगा? रिश्ते के बारे में बताना क्या चुगली होगा, इसका सवाल ये है। नहीं भाई, ये तो आप अगर उसके बारे में जानते हैं और आप हक नहीं बता रहे तो आप उसके पूछने का हक ही अदा नहीं कर रहे। वो न कीमत है न चुगली है। बिल्कुल आपको यह बतानी चाहिए जिससे कि जो आपको पता है, जिससे दूसरे की बच्ची बच जाए। हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। आप अपनी बच्ची के लिए तो उस रिश्ता करने के लिए दूसरे की बच्ची को फंसाना चाह रहे हैं, ये समझिए कि मैं बुरा ना बन जाऊँ, मैं नहीं बनता करता। बताना ज़रूरी हो गया आपको। जुम्मे से रिलेटेड है, जैसे अजान हो जाए एक दुकान के 2-3 भाई हैं तो पहले किसी और को भेज देते दुकान का। इनका सवाल ये है कि 2-3 भाई हों, पहले कोई पड़ जाए फिर दूसरा फिर तीसरा, दुकान बंद ना हो, कारोबार बंद ना हो, क्या ये ठीक है? यही तो आजमाइश है, वो ही वो करते थे। आपको वो 1 घंटा अल्लाह ने इसी आजमाइश के लिए दिया कि आपको 7 भाई दे दिए और काम खूब चला दिया कि भाई दुकान न बंद कर दियो, तू 1.25 वाली पढ़ ले, तू 1.5 वाली पढ़ ले, तू 2 वाली पढ़ ले, नोट कमाते रहो। आजमाइश ही है भाई। कुरान अभी आई ना कि उस दिन मछली नहीं आती थी और शनिचर के दिन बहुत मछली आती थी। शनिचर के दिन जब मछली अल्लाह ने इनके सामने भेजी, भाई साहबा कहते हैं कि जब हमारे ऊपर आजमाइश की आयत आई कि एहराम की हालत में शिकार नहीं करना, तो हम जब जंगल में जाते थे एहराम बांधे हुए उम्रे के लिए, हज के लिए, तो हमारे सामने हिरन और उसके बच्चे ऐसे फिरते थे पकड़ने को, बहुत तबीयत आती थी, मगर क्योंकि आयत आ चुकी थी कि एहराम की हालत में शिकार नहीं करना। यही तो आजमाइशें होती हैं। मैं बताता रहा हूँ, दिन कहाँ भी आएंगे, दिमाग में शैतान ये भी डालेगा जो आप बता रहे हैं, भाई फला भाई वहाँ पढ़ ले, फला भाई वहाँ पढ़ ले। वो तो आपको टाइम फिक्स करना है, जहाँ मस्जिद के हिसाब से अपनी करीब की मस्जिद, तो भाई हमने 1 बजे से 2 बजे तक बिजनेस नहीं करना, क्या कैसे ही कहा है। पर ये तो सस्ता सौदा है, उन्हें तो पूरे 24 घंटे थे भाई, हमें तो 1 घंटा है। अल्लाह ने बहुत हमारे लिए रहमतें बरसा रखी, हम समझते हैं कि बात गरीब आदमी है, काय के सदके के पैसे हाँ दे सकता है। इनका सवाल है सदके के पैसे क्या शादी में दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, गरीब बच्चियों की शादी में सदके के पैसे देने चाहिए, उन्हें ज़रूरत होती है। उल्टे हाथ से पानी पीते हुए सीधे हाथ से तो क्या करते हैं, अपने घर का पूरा निकाला वीडियो वगैरह खरीद करके शाम जाके दूसरे घर के सामने कर रहे हैं। हाँ तो भारत में है वो हाँ, तो ऐसा करना गुनाह तो है ही। तो क्या ये सगीरा गुनाह है या कबीरा गुनाह, और क्या ऐसे गुनाह माफ होते हैं? इनका सवाल यह है कि दूसरे के आगे कूड़ा डालना सगीरा गुनाह है या कबीरा गुनाह है? भाई बड़ा गुनाह है। आप दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जिस नबी ने आपको ये कहा हो कि तुम प्याज या लहसुन खा के मस्जिद में ना जाओ, तुम्हारी खुशबू से दूसरे जो मस्जिद में नमाजी हैं उन्हें तकलीफ होगी, तो आप तो उनके घर के आगे कूड़ा डाल रहे हैं। तो ये बड़े गुनाहों में है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखो ना, ऐसे किसी पड़ोसी को प्यार से समझो, नहीं तो आप थैली उठा के आगे कहीं ऐसी जगह डाल दो जो उसके घर को तकलीफ ना हो। बहुत सवाब का काम है, क्योंकि पाकी को और इसे सफाई को हुजूर ने आधा ईमान बताया, तो आप अपना भी ईमान बचा रहे और उसका भी ईमान बचा रहे। सवाल ये था कि लिफाफा दे सकते हैं क्या वो सदके का पैसा? इनका सवाल ये लिफाफे में दे सकते हैं, सबके बिल्कुल दे सकते हैं भाई। आप तोहफा कह के दे दो, वो गरीब आदमी है तो कोई नहीं। आपके सवाल में जरा से मैं एक हदीस सुना दूँ, बहुत ही खूबसूरत हदीस। हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि जो तकलीफ दे हो। उसका मफहूम मेरे याद नहीं आ रहा सही। उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदबख्त, और इस तरह का मतलब कि जो बहुत बड़े गुनाहों में शामिल होके दूसरों के लिए तकलीफ दे बने। जैसे आपने किसी के घर के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, किसी दुकान के आगे कार लगा दी, या किसी के घर के आगे गंदगी फैला दी जो आप पूछ रहे, ये सब बड़े गुनाहों में हैं उस हदीस की वजह से। ज़ोहर कज़ा हो जाए तो क्या असर के बाद मकरूह वक्त में अदा कर सकते हैं? इनका सवाल ये है, ज़ोहर कज़ा हो जाए तो मकरूह वक्त में अदा कर दें? भाई ज़ोहर कज़ा ही क्यों हो रही? कज़ा तो नमाज इस्लाम में है ही नहीं।
नबी की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई कभी भी, ना उन्होंने हुक्म दिया। अगर आपकी नमाज क़ज़ा हुई तो आपको जब याद आ जाए फ़ौरन पढ़ दो। मकरू वक्त में तो पढ़नी नहीं है, जो मकरू वक्त है उनमें तो आपको किसी मुसीबत पे नहीं पढ़नी। और उल्टे हाथ से पानी पी लोगे, सीधे हाथ से सपोर्ट लगा दिया, उल्टे हाथ से पानी पियो। इनका सवाल ये है कि खाना खाते हुए हाथ सीखने होते हैं। बहुत से लोग जो है वो सीधे हाथ में गिलास नहीं पकड़ते, उल्टे हाथ में पकड़ा, सीधे हाथ से सपोर्ट लगा दी, नीचे से उंगली लगा दी या प्लेट लगा दी, क्या ये ठीक है? तो सीधे हाथ सीखना जाएगा, बिल्कुल सीधे हाथ सीखना जाएगा। वहाँ भी आप दूसरों का ख्याल करते हैं। और लोग जो बैठे हुए हैं वो आपके चीखने गिलास से या चीखने चम्मच से खाना निकालेंगे तो उसमें क्या दिखेगा? तो आप खाने का हुक्म है सीधा हाथ से, पीने का हुक्म है सीधा हाथ। अगर आप सीधा हाथ की सपोर्ट दे रहे हैं तो आपका सीधा हाथ ही गिरा जाएगा, बल्कि दूना और सवाब भी मिलेगा कि आप औरों का भी ख्याल करें। और खाना निकालने में कोई हदीस नहीं है कि आप उनके हाथ से न निकालो। मैं अक्सर देखता हूँ लोग गंदा कर देते हैं इस दूध को, घिन आती है निकालते हैं। उल्टे हाथ से खाना निकालो, सीधा हाथ से। एक सिलप को से सारी बोटी अपनी प्लेट में रख लेना, ये सही है गलत है? दूसरा बैठा हुआ करा होगा, कहीं करा होगा। मतलब बताओ इसके बारे में जरा जहन खुले लोगों का। इनका सवाल ये है कि सिलपची में खाना आया और सारी बोटी एक ही आदमी उतार के बैठ जाए, क्या है? ठीक है, हक तलफी है भाई, ये बड़े गुनाहों में। आप जिस जगह बैठे हैं सबका देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका और बहुत सारे बुजुर्गों का भी तरीका यही रहा कि जो जो अच्छी बोटी आती थी, जो जो अच्छी चीज़ें, फल हो, दूध हो, पहले दूसरों को। कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है कि जो खुद भी दूसरों को तरजीह देते हैं, उन्हें इन्हें सहाबा इकराम का जहाँ जिक्र किया तो सहाबा दूसरों को तरजीह देते थे अपने ऊपर। भाई किसी को एक को प्यास लग रही, पता लगा दूसरा तड़प रहा पानी से, कि उसे पिला देते हैं। वो दूसरे पे पहुंचे, तीसरे पे। ये बहुत मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी। सबकी डेथ हो गई, पानी नहीं पिया अपने भाइयों के लिए। तो ये जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, इन्हें आप देखे तो देखो, आप भी तबीयत खुश हो जाएगी। देखो ये खुदगर्जी है कि आदमी खुद अपना सोचे, जो अपने भाई का सोचेगा फिर अल्लाह उसका सोचेगा। आप देखे देखो उन्हें बोटी है, अगर अगली बोटी आपके पास बेहतरीन ना आई तो मेरा नाम बता दें अगली डिश में। ये बोटी आप बांट दो पहली डिश में, आप करना है काम। माहौल का असर पड़ता है, एक असर पड़ता है माहौल का। जैसे हमारे इलाके में लकी गेट में 10-12 मस्जिदें, वहाँ पे जुम्मा हो रहा है और वो सब मस्जिद वाले एक ही टाइम फिक्स कर लें, सबकी जिम्मेदारी बन जाएगी एक ही टाइम नमाज होनी है ताकि बच जा सके। अब वहाँ ये जो लोग कर रहे हैं 12-35 के 9 बजे 1 बजे 1:15 बजे, तो इसलिए आदमी शैतान और फिर को कर दे परेशान। इनका सवाल ये है कि टाइम अलग अलग होने चाहिए, एक ही टाइम फिक्स हो नमाज का? भाई अलग अलग में ज़्यादा सहूलियत है। देखो इसमें लोगों के लिए, किसी को कोई काम है, किसी को कोई परेशानी है, कहीं जाना है, ये तो अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर कि हम ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ चप्पे चप्पे में मस्जिद है। तो आपको अल्लाह ने ये सहूलियत दे दी। वरना अगर आपकी एक ही इलाके में एक ही मस्जिद हो, जैसे इनमें गाजियाबाद और इधर आप चले जाओ फरीदाबाद वगैरह में, तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है लोगों को पहुँचना। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक से बहुत अच्छा मामला है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जुमा सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में हो। ये जो छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा शुरू हो गया, ये मुनासिब नहीं लगता। जिना किसे कहते हैं? इनका सवाल ये है जिना किसे कहते हैं? जिना जो है बेटा, अभी आप थोड़े छोटे हो, इंशाल्लाह मैं आपके वालिद से कहूँगा वो आपको प्यार से बता देंगे कि क्या मामला है। इंशाल्लाह ताला वो आप पता लग जाएगा आज ही। आप क्या सुन्नतें ना पढ़ सकें तो क़ज़ा पढ़ लें, हैं? क्या सुन्नतें ना पढ़ सकें तो क़ज़ा पढ़ लें। इनका सवाल ये है क्या सुन्नतें ना पढ़ सके तो क़ज़ा पढ़ लें? भाई सुन्नतों की कोई क़ज़ा नबी ने नहीं बताई, ना कभी पढ़ी। तो इसलिए सुन्नतें अगर कभी निकल जाए आपकी इत्तेफाक से तो कोई क़ज़ा नहीं। सिर्फ एक सुन्नत तो हुजूर ने क़ज़ा पढ़ी है। एक बार फजर की नमाज सोते हुए निकल गई तो सब सहाबा भी सोते रह गए, तो हुजूर ने उठते ही सबसे पहले कहा कि भाई वज़ू करो नमाज। तो पहले सुन्नतें पढ़वाई सहाबा को भी और खुद भी पढ़ी, और उसके बाद फिर फ़र्ज पढ़े। तो सिर्फ एक तो फजर की सुन्नत है और एक ईशा की वितर, इनके बारे में हदीस पाक भी है कि अहम तरीन नमाजें हैं फ़र्ज़ों के बाद। तो ये आप ज़रूर इनकी क़ज़ा कर लिया करें। बाकी और किसी सुन्नत की कोई क़ज़ा नहीं है। कोशिश करें निकले ही ना।
क्योंकि इनके बारे में हदीसें ऐसी खूबसूरत हदीसें हैं कि ये आपके लिए कंपलसेशन बन जाएंगी आपकी फ़र्ज नमाज। इद्दत में से निकलने का कोई टाइम या कुछ क्या पढ़ना चाहिए इद्दत में से निकलने के लिए? इद्दत का तो टाइम जब पूरा हो जाए उसमें से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का शुक्र भेज के कि तूने एक बहुत बड़ा अपना जो अहकाम है उनमें से एक हुक्म जो है मुझे पूरा करने की तौफीक दी, इतनी ज़िंदगी दी, इतना तकवा दिया, अलग में बैठ के मैं याद कर सकी, पढ़ सकी, और फिर खुशियों के साथ निकले। निकलते ही अपना फ्रेश होके अच्छे कपड़े, अच्छी लिपस्टिक, अच्छा मेकअप, सब कुछ करें जो करती थी अपने शौहर की ज़िंदगी, ये जताने के लिए कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस शौक से निजात दी। टाइम क्या हो? 10 और किसी के जहन में कोई बात भाई? इनका सवाल है जोर की सुन्नत अगर निकल जाए तो बाद में पढ़ लें। भाई वही तो बता रहा, सुन्नतों की कदर नहीं है। ये हमारे इलाके में बना दिया कि 4 सुन्नतें पहले नहीं पढ़ी बाद में पढ़। निकल जाए तो आप दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ो ना। हुजूर की बड़ी सुन्नत है 4 सुन्नतें पढ़ना, तो आप 15 मिनट बाद वाली दूसरी मस्जिद देखो। हम अपनी सहूलत देखते हैं, रसूलुल्लाह के हुक्म नहीं देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी सुन्नतें नहीं निकली, तो हम हमारी हिम्मत क्या कि हम निकाल दें। आपकी निकल गई, हमारे पास तो अल्लाह ने ऐसा दिया कि 15 मिनट बाद दूसरी मस्जिद, उसके 15 मिनट बाद तीसरी मस्जिद। आप कहीं भी अदा करो, वहाँ सुन्नत अदा कर दो, और उसके अव्वल तो घर सुन्नत अदा करो। सुन्नत तो घर पे पढ़नी चाहिए। और हो गया भाई, किसी के ज़हन में कोई बात तो नहीं? हम वमा अलैना इल्लल बलाग, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी नमाज पढ़ने नहीं रहेगी। या अल्लाह तो रहमत फरमा दे, या अल्लाह तो फजल फरमा दे, या अल्लाह तो करम फरमा दे, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा दे, या अल्लाह हमें यहाँ जो बात की उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसमें किसी किस्म का कोई शर का पहलू हमारे दिलों से दूर फरमा। जितने भी खैर के पहलू हमारी ज़िंदगियों में उतार दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा, हद दर्जे की इत्तबा अता फरमा, हुजूर की ख्वाबों में ज़ियारत नसीब फरमा। हमें जलन से, हदत से, बुग़्ज़ से, चुगली से, ज़िनाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमें वादा खिलाफी से, झूठ बोलने से, झूठी कस्में खा के माल बेचने से हमारी हिफाजत फरमा। हराम कमाई से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें हलाल कमाई में लगा। या अल्लाह हमारी आँखों की, हमारे बदन को, हमारे बोलने को, हमारे सुनने को हलाल फरमा। या अल्लाह पाक हमें हर हराम से बचा, हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम चलने से, हराम छूने से, हराम महसूस करने से। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमें अपने बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी औरतों के साथ बहुत नरम रवैया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुजूर की हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा। हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला बना। हुजूर की सुन्नतें जो मुर्दा होंगी वो जिंदा करने वाला बना। या अल्लाह आज हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।